Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shafkat Shahdool Chanda Baloch, lecturer and Department of Basic Science Related Studies, Bahrain University of Engineering Technology, Jamshoro. So, in this video, we will discuss how to identify different types of ordered differential equation, and I will use both the English and Urdu language so that you can understand it. Before going to start the video, I will request you to kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notification of upcoming videos. Thank you. So now let's start the video. There are various types of first order ordinary differential equation, and these are separable variable differential equation such as reducible to separable variable, homogeneous. The equation may be non-homogeneous or reducible to homogeneous. So it may happen that a differential equation appear and that is reducible to separable, and that may be exact or non-exact differential equation or linear, or it could be a Bernoulli's differential equation. Now question is, what is first order differential equation and how we can identify the different types, because generally we learn the method for solving the first order differential equation, but these methods are only applicable if you know the type of the differential equation. Otherwise, if you don't know what is the type of differential equation we have, then you cannot apply a suitable method. What is the first order ordinary differential equation? The equation involving the first order differential equation could have any of the form. It may have the form, and that is dy by dx is equals to f of x comma y, or it can have the form m dx plus n dy equals to 0. ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास फॉर्म हो कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट हो quotient of two functions say m or n. It is also possible that the derivative of the function is represented by a function of the form f of ax plus by plus c, or might possible the derivative is represented in this differential equation has the form of quotient, and these are the function of the form a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2. Now among them, which of them we can call which type of differential equation? So now let's start with this. The first is the separable variable differential equation. So whenever we have given a differential equation of the form, and that is dy by dx is represented by the quotient of two functions or the product of two functions. For example, we have here m into n और m upon n. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो जिसमें या तो फंक्शंस m और n क्वोशंट फॉर्म में आ रहे हो या प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हो, जिसके अंदर m सिर्फ फंक्शन ऑफ x ही हो और साथ साथ y जो n जो है वो फंक्शन ऑफ y हो, इस सूरत में हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनस, वो सेपरेबल वेरिएबल है. इस सूरत में हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो सेपरेबल वेरिएबल है, क्योंकि हम फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे dy by dx इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई स्क्वायर. हम देखें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कौन सी है, x अपॉन वाई स्क्वायर. अब आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर m जो है वो फंक्शन ऑफ x है, वी कैन सपोज m इज इक्वल्स टू x, और इसी तरह से n ऑफ y जो है वो वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ y है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज दी सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन. कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ जाता है, जैसे कि अब आप एग्जांपल्स में देखेंगे. सो हियर वी हैव y प्राइम मींस डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर sin x इक्वल्स टू 0. अब पॉसिबल है कि हम इसको रीराइट करें, और रीराइट करने के बाद फंक्शन की फॉर्म जो होगी वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगी या क्वोशंट फॉर्म में होगी. तो देखिए हमने इसको रीराइट किया, y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर sin x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो भी देखें हम कहेंगे कि m फंक्शन जो है वो sin x है या माइनस sin x है, और n फंक्शन जो है वो y स्क्वायर है. अगर हम इसको क्वोशंट फॉर्म में लिखें तब भी कर सकते हैं कि हम कहें कि m फंक्शन जो है वो माइनस sin x है और n फंक्शन जो है वो y पावर माइनस 2 है. तो दोनों सूरतों में हम
कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल वेरिएबल है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3 डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फंक्शन एम जो है ये पूरा फंक्शन एम और ये एन है, लेकिन यानी कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है किस फॉर्म में? सो लेट मी रीराइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर्म। नाउ अगेन वी हैव रिटन दैट m इज अ फंक्शन ऑफ x हियर। अब देखिए हमने यहाँ पे m जो है वो फंक्शन ऑफ x यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को रीराइट करके dy by dx को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिखा है, क्वोशंट फंक्शन, क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस, और जिसके अंदर m जो है वो फंक्शन ऑफ x हमने निकाल दिया है, and that is here m is the function of x 3x plus 8 divided by x plus 5 into x plus 3, और ये फंक्शन ऑफ x हो गया m। और इसी तरह से नीचे जो है 4y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 ये फंक्शन ऑफ y हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सेपरेबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने फंक्शन में से x वाले फंक्शन को और n वाले फंक्शन y वाले फंक्शन को सेपरेट कर दिया। नाउ these type of equation can be solved using the method of separable variable. We will discuss in the next lecture or next video how to solve the different type of differential equations. The next we have reducible to separable variable. कभी कभार इस तरह से होता है कि क्वेश्चन जो गिवन होती है वो सेपरेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं, और बाद में वो सब्स्टिट्यूशन से वो सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे पता कैसे चले कि क्वेश्चन जो है ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में है। Now let us see this. So here we have the equation of the form. इस किस्म की इक्वेशन जो होती है वो स्पेशली इस फॉर्म में होती है, इसमें डेरिवेटिव जो रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन से f of ax plus by, ये क्वेश्चन फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता बल्कि इस फंक्शन की फॉर्म में होता है f of ax plus by, या फिर इस फंक्शन की फॉर्म में होगा f of ax plus by plus c। तो डेरिवेटिव जब इस फंक्शन की फॉर्म में हो तो हम कहेंगे क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन देखें, dy by dx जो डेरिवेटिव है इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इस फंक्शन की फॉर्म है 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a जो है वो 4 है, b जो है वो 1 है और c भी 1 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। इसी तरह से ये क्वेश्चन है y प्राइम इक्वल्स टू कोसाइन x प्लस वाई, ये फंक्शन भी है कोसाइन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस c। अब देखें यहाँ पे यही फॉर्म है फंक्शन की ax प्लस बी वाई प्लस c, और इसके अंदर देखें इस फंक्शन के अंदर a हो गया 1 कोसाइन ब्रैकेट ax यानी कि a हो गया 1 और by यानी कि b हो गया 1 और c 0, यहाँ पे c 0 है, ज़रा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, c 0 है। तो sometimes equation may have a logarithm derivative, so in that case we have to first rewrite the equation in the simple derivative form. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो, कोई लॉगरिथम की एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है तो उसको पहले रिराइट करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फंक्शन की फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इन दोनों फॉर्म में से बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब देखें आप, व्हेन यू रीराइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको रीराइट करें अगर तो ये बन जाएगी y प्राइम इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस 3y और c 0 है। अगर इसको इस फॉर्म में देखा जाए तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर c 0 ले लें। अगली इक्वेशन हमारे पास है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभार हमको मिली हुई होती है इस फॉर्म के अंदर m dx प्लस n dy, या फिर मिली हुई होती है इस फॉर्म में m अपान n, इसमें m और n x और y का फंक्शन नहीं होगा बल्कि दोनों वेरिएबल्स का होगा, x और y दोनों का। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी तब भी हम कहेंगे होमोजीनियस है, या इस फॉर्म में गिवन हो तब भी हम कह सकते हैं होमोजीनियस है। लेकिन कब कहेंगे उसकी कंडीशन है वो देखते हैं कि अगर m और n जो है वो होमोजीनियस फंक्शंस हो और उनकी डिग्री भी एक ही जैसी हो, सेम डिग्री हो, तब कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है पहले आप देख लें, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है रिकॉल करें जरा कैलकुलस। फंक्शन f is said to be homogeneous if it can be written in any of the form। अगर हम फंक्शन f को इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म लिख सकें तो हम कहेंगे
होमोजीनियस फंक्शन है, या फिर फंक्शन एफ को इस फॉर्म में लिख सकें। अब आप ज़रा गौर करें, अगर रिप्लेस कर दें एक्स और वाई वेरिएबल्स को पैरामीटर टी एक्स टी वाई से, तो ये हो जाए और फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए टी पावर एन एफ ऑफ एक्स का वाई, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन सेम वापस आ जाए और मल्टीप्लाई हो जाए कोई पैरामीटर पावर एन, तो ये एन हो जाएगा डिग्री और फंक्शन कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन। या फिर अगर हम फंक्शन में से एक्स पावर एन कॉमन निकाल सकें और फंक्शन की फॉर्म वाई अपान एक्स बन जाए, तो एन डिग्री कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगा होमोजीनियस। मिसाल के तौर पे सपोज करें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस फंक्शन में रिप्लेस कर दें एक्स को टी एक्स से, वाई को टी वाई से, सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये सेम फंक्शन, यानी कि हमने फंक्शन को लिख दिया इस फॉर्म में। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एफ जो है वो होमोजीनियस है, उसकी डिग्री सेकंड है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। और साथ में अगर ये देखें फंक्शन जी और एच, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे या सेम तरीका अपनाएंगे चेक करने के लिए होमोजीनियस है कि नहीं है, तो उसका पता चल जाएगा आपको कि ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे टी एक्स, यहाँ से टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी कॉमन रह जाए, टी कॉमन नहीं निकाल सकते टी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टी स्क्वायर ले लें, दोनों में से कॉमन निकालें, तो टी स्क्वायर एंगल के अंदर रह जाएगा, इसकी वजह से फंक्शन सेम एच नहीं मिलेगा हमको, तो इसीलिए कहेंगे ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है चेक करते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि ये फंक्शन एम और एन कौन से हैं और ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन जो है होमोजीनियस एम फंक्शन है और ये फंक्शन 2x बाय एन फंक्शन है। चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। अब देखा तो यहाँ पे टी स्क्वायर और फंक्शन एम खुद आ गया, तो उसका मतलब है कि एम फंक्शन जो है ये होमोजीनियस है सेकेंड डिग्री। और एन को भी चेक करें अगर इसी तरह से, तो देखिए टी स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया और दोबारा एन फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब है कि एन फंक्शन जो है वो भी होमोजीनियस है और सेकंड डिग्री होमोजीनियस है। क्योंकि दोनों फंक्शन सेकंड डिग्री होमोजीनियस है, कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे ये फंक्शन है एम और ये है एन। अब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो कैसे चेक करें इसको। तो आप देखिए एम को इन टर्म्स ऑफ टी एक्स टी वाई लिखेंगे वेरिएबल्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें टी पावर 0 कह सकते हैं, ये कि टी बाहर नहीं है लेकिन फंक्शन खुद आ गया बाहर, फंक्शन सेम रिटेन हो गया, तो हम सपोज कर सकते हैं टी पावर 0 यानी कि 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। इसी तरह से अगर फंक्शन खुद आ जाए, ये पैरामीटर्स चेंज करने के बाद फंक्शन खुद आ जाए, तो उसका मतलब है कि टी पावर 0 आ गया साथ में, क्योंकि टी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये भी जो है होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 0 है। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अगली इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो किस्म होते हैं, एक होते हैं नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। अब दोनों में तो पता कैसे चले कि ये पहली बात कि नॉन होमोजीनियस है, दूसरा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है या रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। तो आप देखिए कि पहले तो ये कि इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म इस तरह से होगी कि फंक्शंस एम और एन जो है वो इस किस्म के फंक्शन होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये एम और एन फंक्शंस हो गए, इस तरह से होंगे। और साथ ही अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सिर्फ ले लें कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालें न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, इस तरह से a1 b1 अपान a2 b2 फाइंड डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, और अगर जीरो आ जाए तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। तो यही आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि पहले तो फंक्शन की फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में हो, क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शंस, और फंक्शन की फॉर्म क्या है, लीनियर a1x प्लस b1y प्लस c1, लीनियर इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2, लीनियर इन टू वेरिएबल x एंड y। तो क्वेश्चन फॉर्म में लीनियर फंक्शन है इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। और फिर अगर हम देख तो उसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस, और उसके बाद हम चेक करेंगे वेरिएबल्स एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो आ जाए तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस,
और अगर नॉन जीरो नहीं आया तो रिड्यूसिबल टू, यानी कि जीरो आ जाए, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3। अब आप देखिए डिटरमिनेंट जब निकालेंगे आप तो जवाब आ जाएगा नॉन जीरो, माइनस 3 जवाब आ गया, यानी कि नॉन जीरो। मतलब ये होगा कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस में। तो इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखें, इसमें भी अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो जवाब आ जाएगा नॉन जीरो, -5 जवाब आया नॉन जीरो। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखें x माइनस वाई, अब यहाँ पे कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे और जवाब आ जाएगा इसका नॉट जीरो, यानी कि 2 जवाब आया नॉट जीरो। इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है। अब देखिए रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल, मैंने आपको आइडिया दे दिया इसका भी। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल होगी, लेकिन वो कहलाएगी नॉन होमोजेनियस। आगे देखते हैं किस तरह से। तो सेम फॉर्म में क्वेश्चन की नॉन होमोजेनियस, कोफिशिएंट निकालेंगे, जवाब अगर जीरो आ जाए तो कहेंगे रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है। मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा जीरो। तो अब कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है। देखें इक्वेशन का फॉर्म सेम ही है, सिर्फ वेरिएबल की जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वहां से पता चलता है कि अगर जीरो है या नॉन जीरो है तो सेपरेबल है या होमोजेनियस है। तो ये इक्वेशन हो गई नॉन होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। इसी तरह से आप देखें सेकंड इक्वेशन जो आई है हमारे पास, इसमें भी कोफिशिएंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, और आप देखें जवाब आएगा जीरो। इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी जो है नॉन होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, इसमें भी आप चेक करें कि x और y जो वेरिएबल्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स x और y के डिटरमिनेंट निकालेंगे, जवाब आ जाएगा जीरो। इसका मतलब है कि ये थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है ये भी नॉन होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल है। अब एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो कैसे पता चले कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, ताकि हम वो सूटेबल मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकें। तो अगर इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इस फॉर्म में अगर हम डेरिवेटिव निकालें फंक्शन एम का जो कि फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स और वाई, एन भी दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई। अगर डेरिवेटिव ले फंक्शन एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जवाब आ जाए बराबर, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालें एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जवाब बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर बराबर ना आए तो सिंपली हम कहेंगे ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर इंस्टेंट सपोज करें ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन हो गया एम, ये हो गया एन, यानी कि जो dx के साथ उसको कहेंगे एम, याद रखिएगा इस फॉर्म के अंदर जो dx के साथ है वो एम है और dy के साथ जो है वो एन फंक्शन है। तो इसके अंदर ये हो गया आपका एम, ये हो गया एन, और साथ में डेरिवेटिव लिया हमने इनका। तो देखिए पार्शियल जब डेरिवेटिव लेंगे y से तो x सपोज करेंगे कांस्टेंट, और जब x से लेंगे तो y सपोज करेंगे कांस्टेंट। तो इसी तरह से डेरिवेटिव लिया हमने m का, तो 2x3, अब ये x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y से डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल। यहाँ जवाब आ जाएगा -6x², ये भी कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो जवाब आ गया -6x², और प्लस 3x कांस्टेंट है, y² का आ जाएगा 2y, तो 3 × 2 6xy, तो ये जवाब आ गया -6x² + 6xy। इसी तरह से जब आप n के डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट लेंगे तो उसका जवाब भी सेम आएगा, इसलिए हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, एम और एन फंक्शन निकाल लिया हमने इसमें से। ये आपका एम फंक्शन हो गया जो dx के साथ है, और एन फंक्शन हो गया जो dy के साथ है। डेरिवेटिव लिया एम का विद रिस्पेक्ट टू y और एन का विद रिस्पेक्ट टू x, जवाब चेंज आ गया। अब जब चेंज आ गया तो हम कहेंगे डेरिवेटिव्स बराबर नहीं है, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है।
तो ये मेथड्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि क्वेश्चन की पहले तो फॉर्म क्या है, फॉर्म करने के चेक करने के बाद उसकी कंडीशंस क्या है, कि हम पता कर सके कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी टाइप है। नेक्स्ट, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसकी और डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे यहाँ पे। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर। तो देखिए आप, a1 ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव से, प्लस फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है y से, डिपेंडेंट वेरिएबल से, और राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x और है। तो पहले फंक्शन ऑफ x जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड फंक्शन ऑफ x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y से मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में फंक्शन ऑफ x राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है। अब इसको हम रीराइट करते हैं इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम रीराइट कर लें और फंक्शन p और q पता कर लें तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये दो फॉर्म्स आ गए, इनमें तो कोई भी एक फॉर्म हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आमतौर में ये इक्वेशन इस तरह से मिली हुई होती है, इनकी स्पेसिफिक फॉर्म है। तो देखें इसके अंदर अगर उसको रीराइट करें तो p बन जाएगा ये फंक्शन, यानी कि a0 अपान a1, और q बन जाएगा फंक्शन f ऑफ x अपान a1 ऑफ x। मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy बाई dx प्लस 1 अपान x ln x y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपान ln x। अब आप देखें डेरिवेटिव का कोफिशिएंट में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपली 1 है। तो p ये हो जाएगा 1 अपान x ln x, और q हो जाएगा ये फंक्शन। तो इसका मतलब है p हमारे पास ये हो गया, q ये हो गया। तो ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको इसके स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे, वो इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं इन मेथड्स के, तो वो डिस्कस करेंगे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अब देखें ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दी हुई है, इस वाले फॉर्म में, यानी कि जनरल फॉर्म में। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और p और x फाइंड कर लेंगे, p और q, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है जब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते तो p और q पहले पता किए जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसको एप्लीकेबल मेथड अप्लाई करके सूटेबल मेथड सॉल्व करते हैं। तो देखें x से डिवाइड कर देंगे तो p मिल जाएगा 1 प्लस एक्स कोटेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई x, q मिल जाएगा 1 क्योंकि x डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कभी कभार ये भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x के बजाय y में लीनियर, यानी कि y में लीनियर होती है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों इक्वेशंस जो मैंने बताई आपको फॉर्म्स के अंदर, और जो भी हमने दो एग्जांपल्स किए हैं, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कभी कभार जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिवर्स केस में होती है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल x होता है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसकी फॉर्म बनती है लीनियर। मिसाल के तौर पे अगर उसको इस तरह से लिखा जाए dx बाई dy, तो पहले हम डिस्कस कर थे dy बाई dx, और अब आ गया dx बाई dy प्लस x इक्वल्स टू माइनस y। अब इस इक्वेशन की फॉर्म कैसे होगी, इसमें हमको फंक्शन ऑफ x के बजाय फंक्शन ऑफ y निकालने होंगे जो कि p और q होंगे। अब जैसे p ऑफ y के यहाँ पे क्या हो गया 1, और साथ में राइट साइड पे जो कांस्टेंट फंक्शन q ऑफ x यहाँ पे होता है वो q ऑफ y होगा, वो है माइनस y। तो ये क्वेश्चन हो गई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। इन वेरिएबल y का मतलब है कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा चेंज कर दें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि हम राइट साइड पे जो फंक्शन है f ऑफ x उसमें मल्टीप्लाई कर दें y पावर n, n इज एनी इंटीजर और नंबर, इट मे बी एनी नंबर, it may be a fraction or integer, whatever you want, so it is only a number, remember that thing. So now in that case we can rewrite this equation and we can reduce this to linear differential equation. इस फॉर्म को हम कहते हैं, इसको इस तरह से लिख लें, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें dy बाई dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू q ऑफ x y पावर n, जैसे कि लीनियर फॉर्म में लिखा था, और आप बर्नौलीज की फॉर्म में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में,
तो सिर्फ a1 को हटा के यहाँ पे लेके आ जाए, डिवाइड कर दें, p मिल जाएगा, फिर f ऑफ x से डिवाइड कर दें, q मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें आप याद रखें कि n जो है y पावर n, n की वैल्यू 0 भी ना हो और 1, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y पावर 0 होती यानी कि y नहीं होती। और n नॉट इक्वल्स टू 1, अगर 1 ले लेंगे तो सेपरेबल वेरिएबल सॉल्व हो जाएगी, सेपरेबल वेरिएबल कहलाएगी। तो इसके अलावा कोई और नंबर हो तो हम कहेंगे बर्नौलीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मिसाल के तौर पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, डी ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एल एक्स वाई। तो ये देखें सिमिलर इक्वेशन है जो हमने दी थी, सिर्फ फर्क क्या है कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट में एक ये नंबर आ रहा है, एक टर्म आ रही है वाई क्यूब। अब y का पावर 0 भी नहीं है, y का पावर 1 भी नहीं है। उसके अलावा इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो होगा ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें p और q क्या हो गया, वो ये हो गया, और n की वैल्यू जो है वो 3, नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमारे पास राइट साइड पे वाई स्क्वायर है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो y पावर n की वैल्यू जो है वो 2 है, 1 और 0 नहीं है। तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लीनियर से मिलती जुलती है, सिर्फ लास्ट टर्म जो राइट साइड पे है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है y पावर n, और n जहाँ पे 1 भी नहीं है और यहाँ पे 0 भी नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रिराइट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर हमको मिल जाएगा p इसके बराबर, q इसके बराबर, और n वैल्यू है 2 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसी तरह से जिस तरह से हमने बताया आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कभी कभार उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बजाय y होता है। सो इसी तरह से बर्नौलीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसके अंदर भी कभी कभार इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाता है x के बजाय, और वो कहलाती है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन dx बाय dy प्लस x इक्वल्स टू माइनस y x पावर 3, तो ये कहलाएगी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें p ऑफ y होगा 1, q ऑफ y होगा माइनस y, और n की वैल्यू जो होगी वो ये 3 होगी। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। शुक्रिया आपने वीडियो देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।